सर क्या ये बात सच है कि फिल्म बॉर्डर का जो मथुरा दास था उसको ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। यार साउथ का जो खाना है वो ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट है और समथिंग नॉर्थ का नहीं है ऐसा कुछ कभी ਐਸਾ ਬਹੁਤ आपको ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰਦਾ कि 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀ। अच्छा 94.3 ਮਾਈ ਐਫਐਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਰਜੇ ਜੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਜੇ ਗੋਲਮਾਲ ਗਗਨ। 2026 ਦੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ 2। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ हॉस्पिटल सरहंद पहुंचे हैं। बिल्कुल एंड राणा पाइल्स हॉस्पिटल सरहंद में हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेंद्र सूरी सर, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। अब जैसे जस्सी ने बताया कि बॉर्डर फिल्म आ गई है, बॉर्डर 2, और धूम मचा रही है जस्ट लाइक धुरंधर। सो सर, बात हमारे सवाल जो है उससे रिलेटेड है, हमारी थीम बॉर्डर से रिलेटेड है। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ट्रेंड ਲਈਏ वैसे चल ਸਰ, रहा है। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ देखिए ਨਹੀਂ? ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। तो हमारा सवाल भी इसी से आता है कि सर क्या पाइल्स भी बॉर्डर देखती है? मतलब कि एक हर हर कंट्री की और हर स्टेट की एक बॉर्डर होता है, तो क्या पाइल्स भी ये देखता है कि यहाँ पे हम ज्यादा हैं और यहाँ पे हम कम है? स्टेट वाइज जैसे हम करें, हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में ज्यादा होता है, साउथ में कम होता है, ਐਸਾ क्या? ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। जी ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, राइट। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ नो बॉर्डर। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ KFC ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਲਸ प्रेवलेंट है और बहुत कॉमन डिजीज है। कोई ऐसा, अगर हम स्टेट की बात करें वैसे, कोई ऐसा भी आपके दिमाग में कभी माइंड में आया कि यार साउथ का जो खाना है वो ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट है और समथिंग नॉर्थ का नहीं है, ऐसा कुछ कभी? ऐसा बिल्कुल है, हमारे नॉर्थ का फूड बहुत ज़्यादा ऑयली है। ऐसे हमने कुछ एरिया भी डिमार्केट किए हैं, जैसे हमारे पंजाब में एक मलेरकोटला जगह है, जम्मू कश्मीर में या यूपी में सहारनपुर है, हिमाचल में एक रोडू बेल्ट है, जहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा कंजप्शन है उसकी कंजम्पशन है, ओके। और फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली उन एरियाज में पाइल्स बहुत ज़्यादा है, बैलेंस डाइट एक तरह से नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोटीन ज्यादा है तो फाइबर कम है। फाइबर कम है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੇਨਲੀ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਔਰ ਫਿਸਚੂਲਾ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੌਥੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਮਰੋਇਡ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਸਚੂਲਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਿਸਚੂਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है सर। ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਇਲਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਵਗੈरह ਦੇ ਨਾਲ। जी सर, मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने शायद पहली वाली तो बॉर्डर देखी होगी। हाँ Let's जी, not हाँ talk जी, about हाँ, Bangladesh देखी हुई, वाली। हाँ। हम बॉर्डर मूवी की बात करते हैं कि सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के लिए एकदम फिट थे, तो ऐसा क्या फूड है जो एक सोल्जर के लिए माना जाए कि ये खाना जो है हमारी बॉडी के लिए भी एकदम फिट है, हमें डेली प्रोटेक्ट कर सकता है, स्पेशली पाइल्स के पेशेंट्स के लिए? पाइल्स के पेशेंट में फाइबर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन और फाइबर, ये हाइड्रेशन। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हाइड्रेशन मेंटेन होनी चाहिए, आपको जितनी प्यास लगे उतना पानी आपको पीना चाहिए। एक एवरेज आदमी को 1-1.5 लीटर पानी ज़रूर लेना चाहिए।
दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए, ताकि फाइबर प्रॉपर आपके अंदर चला जाए और उससे इंटेस्टाइन की क्लीनिंग भी होती है और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बैलेंस डाइट चाहिए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो ये तो फूड की बात रही। हाउ बेनिफिशियल इज द फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो, बिकॉज फिट रहने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जी जी जी। हर बंदे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देर सर्फिंग कर रहा है, नेट पे है, फ़ोन में ही अब दुनिया समा गई है, तो सारे लोग फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा ही नहीं और कॉन्स्टिपेशन रहेगी। आप स्ट्रेन भी करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट। ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ प्रॉब्लम ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਖਾਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ डेफिनेटली ਉਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ, स्टूल्स भी सॉफ्ट रहेंगे और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब आप कह रहे कि स्वॉलो करना आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे जल्दी स्वेलो से करने से ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बॉडी में भी एक सारी चीजें प्रोग्राम्ड हैं। हाँ, जैसे ही आप एक बाइट मुंह में डालते हो तो हमारे स्टमक को पता होता है कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है उसकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए। अच्छा ठीक है। पर जब हम उसको स्वेलो करते रहते हैं तो हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्लो खाएं, अच्छे से बैलेंस डाइट लें, और जब फोन खाना खा रहे हैं तो कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्शन को यूज ना करें। सर बॉर्डर मूवी में एक डायलॉग है कि कुछ भी हो पोजीशन नहीं छोड़नी हमने। तो पोजीशन पाइल्स की कौन सी ऐसी फूड हैबिट्स हैं जो नहीं छोड़नी चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड हो। फ्रूट, वेजिटेबल्स और अनाज, ये तीनों आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट हाइड्रेशन होनी चाहिए। तीसरा, आपको खाना धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है। चौथा, टॉयलेट में अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं करना। जब आपको टॉयलेट का प्रेशर है तुरंत जाना है, और जब प्रेशर नहीं है तो नहीं जाना। और टॉयलेट में फ़ोन यूज़ नहीं करना। और जब भी अगर आपके घर में प्रेशर पंप है, अगर आप जब वो सेल्फ वॉश यूज़ करते हो तो हमेशा उसका प्रेशर पहले चेक ज़रूर पहले करें। चेक करो। हाँ सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप कहीं भी मॉल्स में भी जाते हैं, किसी का प्रेशर ज्यादा कम हो जाता है, क्या ये भी इफेक्ट कहीं ना कहीं करता है? यू हैव नो आइडिया कि कहाँ पे कैसा प्रेशर। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। एक पेशेंट मेरे पास दिल्ली से आया था, वो उसने बताया कि वो एक शादी में गया और शादी में रूम बुक किया हुआ था, तो उसने रूम में स्टे किया। तो एक ही बार उसने वो जो सेल्फ वॉश है वो यूज़ किया, और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसी से इंजरी होके उसको पाइल्स हो गई। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਨਮੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डेफिनेटली। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਲਸ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। यू लॉस्ट द वॉर। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ अर्ਲੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
सर फिल्म बॉर्डर में अगर आप याद करें एक सीन आता है जिसमें कुएं का वो पर्दा हटाते हैं और सारे जितने भी सैनिक है कुएं के पास जाते हैं। दैट मीन्स हम हाइड्रेशन की अगर बात करें पानी कितना जरूरी है और वो इस चीज से लड़ते हैं, डिहाइड्रेशन से भी लड़ते होंगे आई एम श्योर। ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में होते हैं, हम पानी कम पीते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। तो क्या ये एक साइलेंट एनिमी बन जाता है हमारा? देखिए, बॉडी का मैक्सिमम पार्ट पानी है, अर्थ का भी मैक्सिमम पार्ट पानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस लेवल में जो चीज़ हमारी बॉडी में है उसी लेवल में मेंटेन हो जाए। उसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खाना 2 दिन नहीं खाओ, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर पानी नहीं पियोगे तो डेफिनेटली डिहाइड्रेट होके बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, आपको वीकनेस भी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जैसे डायरिया में हम लोग देखते हैं, डायरिया के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इवन एक दिन के डायरिया के बाद भी लोग 3-3 दिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते। तो हाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूल भी कहते हैं कि हार्ड आता है अगर पानी अगर आप पानी कम पियोगे तो डेफिनेटली बॉडी, जो स्टूल इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर रहता है उससे भी पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है, और उससे ये सारी प्रॉब्लम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो जाती है। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। देखो, कोई भी बंदा ना मोनोटोनस लाइफ नहीं लीड कर सकता। कदी ना कदी तो पार्टी भी करनी पेगी, ब्याह शादी च भी जाना पेगा, दोस्तों कोल भी जाना पेगा, किसी ऐसी जगह भी जाना पेगा जिथे ਤੁਹਾਡਾ कंट्रोल नहीं है कुकिंग ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। दूसरी चीज, ਜਦੋਂ भी किते बाहर खाना खाना है तो पहला हमेशा सैलड खाना है, और कोशिश करनी है कि एंड च फ्रूट भी जरूर खाता जाए ताकि सफिशिएंट फाइबर अंदर चला जाए। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बैड इफेक्ट ने ਉਹਨੂੰ मास्क कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक सिचुएशन के बारे में हमें कभी बात नहीं करी, दोस्तों के बीच में बैठ के अल्कोहल हो जाता है, तो हाँ। ये भी इट कैन लीड टू these things। how much alcohol is also a silent killer, or we can say अल्कोहल इज ऑल्सो ए डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक। अच्छा। तो जितना आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उतना आपकी यूरिन आउटपुट बढ़ती है, जितनी ज्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ती है बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ती है, डिहाइड्रेशन बढ़ेगी तो उससे स्टूल हार्ड हो जाएगा, स्टूल हार्ड होगा तो उससे ऑफ कोर्स पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सर सोल्जर की लाइफ में इमोशन और एंड्योरेंस फिल्म दिखाती है कितना जरूरी है। तो स्ट्रेस या गलत खाना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी लाइफ पे कितना असर डालता है? स्ट्रेस सारी बीमारियों में एक कॉमन रीज़न है। स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी बीमारी की जब आप देखते हो उसके कारण, तो उसमें एक कारण स्ट्रेस 100% होता है। तो स्ट्रेस और बैड फूड इज़ ए वेरी बैड कॉम्बिनेशन, कि अगर आप हर समय स्ट्रेस्ड हो और आपका खाना भी सारा फास्ट फूड है, आपकी डाइट में फाइबर बहुत कम है, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी डिहाइड्रेटिंग ड्रिंक्स हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ ए वेरी बैड कॉम्बिनेशन। और उस केस में आपको कॉन्स्टिपेशन और जो प्रॉब्लम्स हैं, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ तो ਤੁਹਾਡੀ हेल्दी डाइट है, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर और अगर हम पाइल्स को एक दुश्मन मान ले तो क्या उसके खिलाफ सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी, बॉर्डर स्टाइल स्ट्रेटेजी, काउंटर अटैक होना चाहिए? अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें या फूड की स्टाइल की बात करें? देखिए, कोई भी आदमी अपना लाइफस्टाइल परमानेंटली चेंज करना बड़ा मुश्किल है। अगर घर में सब लोग एक चीज खा रहे हैं, हर रोज आपके लिए नई चीज बनेगी, ये प्रैक्टिकली बहुत ही टफ सिचुएशन Possible नहीं, है। तो जो बना है आप उसी को खाइए, बस एक चेंज करिए कि धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है, स्ट्रेस में कभी खाना नहीं खाना। लिक्विड इनटेक हमेशा हायर साइड पे होना चाहिए, गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको डेली लेना ही लेना है। और तीसरी चीज है कि आपकी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल जरूर होने चाहिए।
चौथी चीज है कि टॉयलेट में फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99% लोग आजकल टॉयलेट में फोन यूज करते हैं। ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲੂਟ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸੈਲੂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਸਟੂਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3rd ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਸੀ। सर क्या ये बात सच है कि फिल्म बॉर्डर का जो मथुरा दास था उसको भी पाइल्स थी और वो छुट्टी इसलिए चाहता था क्योंकि उसने इलाज कराना था? रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। और वो रास्ते से इसलिए आ गया था क्योंकि उसे रास्ते में मिल गया था राणा पाइल्स हॉस्पिटल और इलाज करा के जल्दी आ गया था। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਪਾਇਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਹੰਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।